In this lecture, I will discuss all about tags. Some tags I will show you how to use and when to use. What are the meanings of the tags that I am going to show you in front of you. So first of all, let me create a file. So file, yeah, you should have one file which name maybe int. So I am taking index.html. Okay, this is a file name. Okay, so right now just I am going to cover what tags, not CSS. Yeah, only tags. Let me bring the basic structure which is in front of you. I want to start with the formatting. I will not cover all these tags, but relevant tags that you can understand, which will be very comfortable for you. So first tag which we have that is address. Yeah, address means address of something. This is the meaning of English. It comes in English. You can say this is a keyword for HTML. Yeah, this is also English word. So what is the meaning of this tag? So answer is address, location of something, location of this particular body. So same thing is over here. Meaning of address is to tell location of something. So defines the contact information means अगर हम चाहते हैं कि एक यूजर जिसका वेबसाइट है उसका इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पर दिया हो ताकि यूजर इंटरेक्ट कर सके, किसी प्रकार का कोई डॉट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, तो कॉन्टेक्ट के माध्यम से वो जुड़ सके और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके. सो दैट्स व्हाई कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन by using this address. Okay, I think it is appeared at the end of the website. I will show you. For example, we have this address. तो इस टैग में जो भी इंफॉर्मेशन देना, जैसे जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे नीलांबर, और यू कैन से हजारीबाग जैसे. तो ये तो सिंपल लिखा हो रहा है, इसको क्या H2 में किया जा सकता है, H2 में किया जा सकता है, हेडिंग में किया जा सकता है. उससे क्या होगा कि वो बिग या स्मॉल आएगा. तो हम चाहते हैं कि बिग रखे या स्मॉल रखे, तो H2 इज चॉइस. सो मैं यहाँ पर लोकेशन इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो हजारीबाग, जैसे हजारीबाग, तो हजारीबाग फिर कोमा देके, because it is a address, yeah. तो according to requirement, what do you want to insert address? It depends on, जैसे right now just I am taking this as an example.
So Jharkhand, because Hazaribagh comes into Jharkhand, that's why. So this is Jharkhand. फिर आगे मैं और डिटेल्स दे सकता हूँ, लेकिन दिस इज जस्ट एग्जांपल। अब ये एक आउटपुट दिखाएगा कि किस तरह का। अब फिर इसमें हम स्टाइल ऐड कर सकते हैं सो दैट इट कैन लुक मोर कंफर्टेबल, यूजर कैन इंटरेक्ट इजिली विदाउट एनी इरेटिंग। तो हम इसे गो लाइवर करते हैं, गो लाइवर। Yeah, so it came over here. This is just, it is not rocket science. Just understand, if you want to give address, so you can use this style. फिर हमारे पास है बी। बी मतलब बोल्ड, बोल्ड। जैसे एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ या पैराग्राफ, तो जिसमें हम बहुत कुछ लिख सके, तो ये है पैराग्राफ। ठीक, जैसे this will be full location of myself, but I should not do like that. मैं कोई किताब या फिर HTML, जैसे HTML is designed for HTML is designed by this person. It can be. So this, okay. फिर उसके बाद पर्सन का नाम है या फिर टीम। बर्नर्स लिए, बर्नर्स पे कब बनाया गया था, तो 1991। It is a markup language. It is used to create, yeah. So यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि what is a HTML. So it is used, yeah, correct. This is correct. So it is used to correct web. तो let me, यहाँ पर क्या है, वेब, okay, pages and web application। ठीक है, it is a standard markup language for creating, तो नहीं, it is a language for creating web pages and web applications फिलहाल के लिए राइट नाउ दिस इज इनफ। लेट मी एंड दिस टैग। तो इस हमारा क्या, हमें क्या समझना था, बी टैग का यूज। इससे पहले हमने एड्रेस टैग का यूज समझा। तो बी टैग का मतलब देखो, बी और एक बी आ रहेगा, तो सिर्फ बी आ रहा तो उसका मतलब है कि बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करना, और बी आ रहा तो इसका मतलब ब्रेक, लाइन को ब्रेक करना या फिर गैप देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे, मैं इस पर्सन का नाम जो कि टीम बर्नर्स-ली है, इसे मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, एक हाईलाइट के रूप में रहे तो वेबसाइट पर। तो यस, वी कैन यूज ओवर हियर। नाउ यू कैन सी हाउ इज इट इज यूज्ड। whatever we want to show bold part, तो वहीं पर हमें यूज करना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्टार्टिंग और यहाँ फिर एंड में करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि पूरा बोल्ड हो, तो फिर स्टार्टिंग से, जहाँ से लेकर हम बोल्ड करना चाहते हैं वहां से स्टार्ट करना होगा, और जहाँ तक हम खत्म करना चाहते हैं वहां पर
हमें वो एंडिंग टैग लगाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट आई वांट कि ये सिर्फ नाम बोर्ड होना चाहिए, तो नाम बोर्ड होना चाहिए, बी बी टैग है, तो ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या हो कि हम चाहते सिर्फ यहाँ तक रहे, सिर्फ यहाँ तक रहे, तो बी इंडेंट टैग। नाउ यू कैन सी व्हाट इज गोइंग टू रिजल्ट, तो यही हुआ कि ये बोल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसी को बोल्ड करना चाहिए। हमने सिर्फ इसी को बोल्ड करना चाहा, तो व्हाट इज द रिजल्ट, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर ये हो गया। तो इसके बाद हमारे पास है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग में एक आई नाम का भी टैग है जिसका काम होता है इटैलिक करना, किसी वर्ड्स को इटैलिक में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज, तो ये मार्कअप लैंग्वेज को इटैलिक में कन्वर्ट कर देना, तो उसके लिए आई है, तो आई टैग का यूज करेंगे। फिर उसके बाद जहां तक हम चाहते हैं वहां तक के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक, तो क्या चाहिए, इटैलिक में चाहिए ना, इटैलिक में, तो स्लैश आना कंपलसरी है, या नाउ यू कैन से वेयर इज अ मार्कअप लैंग्वेज, दिस इज अ मार्कअप लैंग्वेज, यू कैन सी देयर इज यूजर डिफरेंस, या फिर कह सकते हो फॉन्ट फैमिली, तो ये कुछ तिरछे लिखा हुआ हल्का, कुछ डिग्री पे लिखा हुआ, लेकिन अगर इस सब की बात करें तो ये 90 डिग्री पर स्टैंडिंग था, लेकिन ये स्टैंडिंग नहीं, ये सम डिग्री पर टिल्ट है, एट सम डिग्री पर ये टिल्ट है, यह डिफरेंस होता है। तो ये इटैलिक का जहाँ जरूरत हो वहां पर यूज किया जाता है। वैसे तो ज्यादा हम यूज देखते हैं ये बोल्ड का एज कम्पेयर टू इटैलिक, लेकिन इटैलिक का भी यूज होता है। फिर उसके बाद डिलट का जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पर आ, जैसे कुछ यहाँ, या फिर हो सकता है कि मैं इस वेब पेज वर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, सेंटेंस को भी डिलीट किया जाता है, तो डिलीट के लिए सिंपल है DL, तो टैग DL है, ये टैग है, ये टैग है, जैसे DAL है, सिर्फ हम चाहते हैं कि वेब पेज डिलीट हो, तो जहाँ तक चाहते हैं वहां तक ऐड करना, इंडेंट टैग लगाना, तो फिर ये ऑटोमेटिक होगा, तो ये वेब पेज हट जाएगा, वेब पेज हट जाएगा, यू कैन सी ये हटा तो नहीं, लेकिन ये एक बता रहा है कि वेब पेज यहाँ पर ये मीनिंग नहीं बना रहा, सो डोंट यूज दिस वेब पेज वर्ड इन योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो ये था। अब जैसे इसी का उल्टा होता है इंसर्ट, इंसर्ट मतलब हम इस वेब पेज की जगह पर कोई और चीज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो INS है, उसके लिए टैग है INS, जैसे ये टैग है मेरे पास, तो हम इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे, कुछ वर्ड है जैसे मैं वेब पेज ही ऐड करना चाहता हूँ, या फिर हो सकता है कि मल्टीपल वेब पेज, मल्टीपल मल्टीपल वेब पेजेस, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जगह पर ये मल्टीपल वेब पेजेस वर्ड को इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो एज यू कैन सी दिस इज मल्टीपल वेब पेजेस, इस तरह कुछ हम इंसर्ट कर सकते हैं। रिमेंबर दिस इज अ नोट लिंक, हम समझते हैं कि जो अंडरलाइन आता है तो ये एक लिंक की तरह काम करता है। लिंक के लिए हमारे पास अलग से टैग है, जैसे एक तो टैग तो नहीं है, लेकिन उसी एक टैग में ही तो वो क्या कहते हैं उसको, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं,
किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को लेकर, तो मुझे लगता है कि ए भी तो एक एट्रीब्यूट है, क्योंकि हम उस एक एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं। लेकिन कंप्लीटली ऐसा लगता नहीं है कि वो एक लिंक इंफॉर्मेशन। फिर भी जब एक पार्टिकुलर ये टैग के बारे में आया था, हम इसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर इंसर्ट का हो गया, डिलीट का भी हो गया, फिर बोल्ड का भी। सो बी आर का भी यूज कर लिया जाए। जैसे ये सेंटेंस यहाँ पर खत्म होता है, ठीक, ये सेंटेंस यहाँ पर खत्म होता है, ये कंटिन्यू है। जैसे मैं चाहता हूँ कि इट इज यूज्ड, ये डायरेक्ट यहाँ लाइन पर है, मतलब कि लाइन बजा है, तो ये है। तो इसके लिए हम लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं। सो फॉर दिस वी yeah, you can say that that is how it worked. It worked like that. It worked because of we used tag. So tag का नाम क्या है, br. ओके, pre, ये भी एक टैग है जिसका मतलब होता है प्री फॉर्मेट। प्री फॉर्मेट जैसा का तैसा, एज इट, जैसा आप लिखना चाहते हैं प्री टैग में, वैसा ही शो होगा हमारे वेबसाइट पर। यानी जैसा जितना भी गैप हो, कितना भी लाइन ब्रेक हो, लाइन ब्रेक ना भी हो, कोई भी चीज कैसा भी लिखा हो कोडिंग में, वैसा ही एज इट इनपुट आउटपुट मिलेगा। सेम इनपुट हमें आउटपुट जैसा ही मिलेगा, मतलब जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट मिलेगा ऑन वेबसाइट। तो वो प्री का यूज होता है, वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस है, वो यूजफुल है, जगह पर अपने जगह पर यूजफुल है। तो इसके बाद हमारे पास टैग है फॉर्मेटिंग में। हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के बाद है बी, तो कंप्लीट हो गया। बी, डी ओ, ओवरराइड्स द करंट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? आर टी एल, द टेक्स्ट विल गो राइट टू लेफ्ट। यस यस, आई हैव अंडरस्टूड। इसका मतलब ये है ओवरराइड करना, यानी जैसे एक सेंटेंस लिखा है, तो क्या करेगा जब हम इस टाइप का यूज करेंगे बीडीओ को, तो डायरेक्शन चेंज कर देगा। जैसे नॉर्थ टू साउथ है, तो वो साउथ टू नॉर्थ से स्टार्ट करेगा लिखना बाय यूज। जैसे हमने इस टैग को यूज किया, तो ये टैग क्या करेगा कि जो एक सेंटेंस हमने, जिस सेंटेंस को हमने स्पेसिफाई करना चाहा बाय यूजिंग दिस टैग, तो ये क्या करेगा कि उस टैग को जैसे लेफ्ट टू राइट होता है, तो राइट टू लेफ्ट ये वर्क करेगा, लिख देगा राइट टू लेफ्ट। ऐसा तो इसका काम तो बहुत काम होता है, फिर भी ये एक टैग है तो हमें समझना भी जरूरी है। तो वीडियो टी से डायरेक्शन है, बी से क्या मतलब हुआ, बॉडी हो सकता है। तो बी से बाय, डी से डायरेक्शन, ओ से ओवर है। हालांकि इसका यूज कम है, फिर भी वी कैन सी की प्रैक्टिकली व्हाट इज यूज। फॉर एग्जांपल, जैसे हम क्रिएट को ही चाहते हैं, ठीक है, क्रिएट को, या फिर हो सकता है कि पेजेस एंड वेब को चाहते हैं, तो ये वीडियो हो जाए। वीडियो मतलब बाय डायरेक्शन ओवर है। इसके लिए डी, डी ओ, वीडियो। फिर इसके आगे एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स क्या है, डायरेक्ट, आरटी, डायरेक्शनल, राइट टू लेफ्ट। आरटीएल मतलब राइट टू लेफ्ट। ऑलरेडी क्या लिखा होगा, लेफ्ट टू राइट लिखा हो, तो यहाँ पर डायरेक्शन हम दे देंगे राइट टू लेफ्ट हो जाए, लेफ्ट टू राइट हो जाए, तो हम ये डायरेक्शन दे। ये एट्रीब्यूट्स है। तो ठीक है, जैसे डी आई आर, लेफ्ट टू राइट, या लेफ्ट टू राइट।
तो इसे में यूज करते हैं पेजेस के लेफ्ट राइट। जैसे एक सेंटेंस देयर आर डाटा डाटा, या फिर देयर आर क्वांटिटीज, जैसे एक ये सेंटेंस है, देयर आर क्वांटिटीज। तो ये क्या होगा कि ये इधर साइड से लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट है, ये तो एज इट हो जाना चाहिए, ये तो एज इट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, लेकिन हम चाहते हैं कि राइट टू लेफ्ट हो जाए, तो जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस एट्रीब्यूट्स, आर टू लेफ्ट, एल से लेफ्ट, आर से राइट, टी से टी, तो हमें ये चेंज करना होगा। तो आर टी लेफ्ट, नाउ यू कैन से ये यू कैन से किस तरह लिखा हुआ है, यानी ये स्टार्ट किया है इधर से, इस डॉट से स्टार्ट किया, ऐसा यूज होता है इस सबका। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट विच इज वीडियो, तो हो गया। फिर बिग, ये तो सपोर्टेड नहीं। ब्लॉक कोट defines a section that is quoted from other sources, ये भी unfamiliar है for me, so I will not discuss about it. Site का define the title of work। उसके बाद कोड है, defines a piece of a computer code। देखा तो कोड क्या है, बटन बटन, टेस्ट, तो कोड इसमें बटन है, बटन, ये भी अनफैमिलियर। हाँ, because it's making sense, but this is a relate करता है, if defines that is going to be defined with